بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کا اعلان کر دیا۔ فیصل آباد سے خلیل طاہر سندھو لیگ کے اقلیتی ایم پی اے منتخب، خواتین کی نشست پر مسلم لیگ نون سے قدسیہ بطول ایم پی اے منتخب، عظمیٰ جبین بھی مسلم لیگ نون کی مخصوص نشست پر ایم پی اے منتخب۔ ٹوبہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی نیلم جبار بھی ایم پی اے بن گئی۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کا اعلان کر دیا۔ فیصل آباد سے خلیل طاہر سندھو نون لیگ کے اقلیتی ایم پی اے منتخب، خواتین کی نشست پر مسلم لیگ نون سے قدسیہ بطول ایم پی اے منتخب، عظمیٰ جبین بھی مسلم لیگ نون کی مخصوص نشست پر ایم پی اے منتخب۔ ٹوبہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی نیلم جبار بھی ایم پی اے بن گئی۔ ملک کا تیسرا بڑا شہر پی ایس ایل میچ سے محروم، اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں 16 سے انٹرنیشنل میچ نہیں ہو سکے۔ شائقین کرکٹ پی سی بی اور ضلع انتظامیہ سے مایوس، فیصل آبادیوں کا اعلیٰ حکام سے میچ کرانے کا مطالبہ۔ ملک کا تیسرا بڑا شہر پی ایس ایل کی رونقوں اور رنگینیوں سے محروم، گزشتہ 16 سال سے اقبال اسٹیڈیم میں بین الاقوامی کرکٹ بھی نہ ہو سکی۔ شائقین ضلع انتظامیہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ حکام کے عدم تعاون کی بھینٹ چڑھ گئے۔ فیصل آباد میں کرکٹ میچ کیوں نہیں ہوتے؟ اسٹیڈیم کا انفراسٹرکچر غیر معیاری یا مالی مفادات کا گھن چکر؟ اقبال اسٹیڈیم میچز کی بجائے محض تقریبات منعقد کرانے کا گراؤنڈ کیوں بن کر رہ گیا؟ 92 لاکھ آبادی کا حامل، پنجاب میں سب سے زیادہ ریونیو دینے والا ضلع فیصل آباد، مگر اس کے شہری ہر طرح کے کرکٹ میچ اپنے شہر کے اقبال اسٹیڈیم میں دیکھنے سے محروم ہیں۔ 1950 انٹرنیشنل میچ 1978 میں پاکستان اور بھارت کے مابین ہوا۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو فنڈز کی کمی کا سامنا، ملازمین نکالنے کے لیے فہرستیں تیار کر لی گئیں۔ پہلے مرحلے میں 1000 ملازمین کو نکالا جائے گا۔ ادھر میونسپل کمیٹی جنگ کی بے حسی، غریب ملازمین کو تنخواہوں کی بجائے رخصتی کے پروانے تھما دیے گئے۔ مینجمنٹ کمپنی کی مالی مشکلات سنگین صورتحال اختیار کر گئیں۔ ملازمین کو نکالنے کے لیے فہرستیں تیار، پہلے مرحلے میں 1000 ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کیا جائے گا۔ شہر میں صفائی کا عمل متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ ملازمین کہتے ہیں کمپنی اخراجات پورے نہیں کر پا رہی تو غریبوں کے چولہے ٹھنڈے کرنے کی بجائے لگژری اخراجات کا خاتمہ کیا جائے۔ ملازمین کو نکالنے سے تو شہر کی صفائی شدید متاثر ہوگی۔ کمپنی اپنی شاہ خرچیاں اگر ختم کرے تو یہ ان کے جو فنڈز کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ملازمین کو نکالنا جو ہے نا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ملازمین مزید بھرتی کرنے چاہیے تاکہ شہر میں صفائی کا نظام بہتر ہو۔ یہ مفاد عامہ کے خلاف ہے سینٹری ورکرز کو نکالنا۔ اگر یہ سینٹری ورکرز کو نکالیں گے تو ہم بھرپور جو ہے احتجاج کریں گے۔ میونسپل کمیٹی جنگ کی بے حسی، غریب ملازمین کو تنخواہوں کی بجائے رخصتی کے پروانے تھما دیے۔ ڈیلی ویجز ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا۔ ڈیلی ویجز ملازمین کی تنخواہیں 3 ماہ سے واجب العلادہ ہیں۔ ملازمین سراپا احتجاج، واجبات کی ادائیگی کا مطالبہ۔ میونسپل کمیٹی حکام کے مطابق احتجاج میں شریک 10 ملازمین 2 ماہ سے نوکریوں پر موجود نہیں۔ دیگر ملازمین کے واجبات کی ادائیگی کے لیے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ میرے گھر دا بجلی دا میٹر اس ٹائم کٹیا پیا سر، میرے 3 بچے میں بہت ہی پریشان ہو گیا سر۔ پچھلے مہینے احتجاج ڈی سی آفس دے باہر کیتا ہی تے انہوں نے ادھے بندے ہٹا دیتے ہیں۔ اس دفعہ احتجاج کیتا انہوں نے سارے ہی ہٹا دیتے ہیں۔ سانو اپنی آواز اٹھاون دلائی کہ نہیں چھوڑے، اسی اپنی محنت کیتی ہے سارے، اسی اپنی محنت دا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن سارے نال ڈی سی صاحب نو سانو یہی مطالبہ ہے کہ سر سانو اس چیز نو انصاف دلایا جائے سر جڑے ساڈے 3 مہینے دی سیلری ہیں سر اور دیوائیاں جائیں سر۔ ملازمین نے ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے اور واجبات کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے۔ جنگ ٹوبہ کا علاقہ مختلف مسائل کا شکار، عوامی وعدے بھی وفا نہ ہو سکے، مہنگائی کا ہر طرف شور، کیا آنے والے دن بدل پائیں گے غریب آدمی کی قسمت؟ 3 روز گزر گئے، یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا نایاب، صارفین خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ ٹوبہ میں یوٹیلیٹی سٹور انتظامیہ نے ماہ رمضان کی تیاری کر لی۔ انتظامیہ کی غفلت، ٹوبہ ٹیکسنگ اور جھنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا بحران پیدا ہو گیا۔ 3 روز سے شہر کے کئی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی سپلائی فراہم نہ کی جا سکی۔ صارفین یوٹیلیٹی سٹور سے خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ ہم پریشان ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، آٹا مل نہیں رہا ہے، آگے رمضان کی آمد ہے تو پریشانی ہے بہت، بازار کا آٹا افورڈ نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے۔ مارکیٹ کا مہنگا آٹا مزدور کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ آٹا مہنگے داموں خریدنے کے غریب طبقے کو جان کے لالے پڑ گئے۔ صارفین کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں آٹے کی وافر مقدار میں فراہمی نہیں کی جاتی۔ وفاقی حکومت آٹے کے مسئلے کو سنجیدگی سے لے۔ دیہڑی دار بندے ہم، آٹا نہیں ملتا، دیہڑی توڑ کے آئے ہیں، 3-4 دن سے آٹا ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہا۔ حکومت سے درخواست ہے ہمیں آٹا ملا جانے۔ دوسری جانب ماہ رمضان میں صارفین کو ممکنہ ریلیف دینے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ ضلع انتظامیہ سے مشاورت کر کے لاہے عمل بنائے گی۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کے جھٹکے، یوریا کھاد کی بوری میں 1350 روپے کا اضافہ۔ مہنگائی کے مارے کاشتکاروں کی دہائی، کھاد کی قیمت میں بے جا اضافے کو مسترد کر دیا۔
ज़राई मुल्क के गरीब किसानों के लिए बुरी खबर, खाद मजीद महंगी। यूरिया खाद की फी बोरी में 1350 रुपए का इजाफा कर दिया गया। यूरिया की कीमत 3981 से बढ़कर 5331 रुपए हो गई। महंगाई के जाल में जकड़े बेहाल किसानों ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बोले खाद की कीमत पहुंच से बाहर हो चुकी, ज़राअत करना अब बस में नहीं रहा। जो खाद पहले हमें 1500-2000 में मिलती थी, अभी एकदम से कीमतें बढ़ गई हैं, तकरीबन 1350 रुपए ज्यादा हो गई है। अभी 5300-5400 में मिलती है, बल्कि वो भी मिल नहीं रही है, खाद हमें मिल नहीं रही है। चिन्योट में खाद बहरान भी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। कीमतों में इजाफे के पेश नजर डीलरों ने खाद ही नहीं मंगवाई। खाद महंगी होने पर फसलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा, किसानों की दुहाई। छोटे जो जिम्मेदार हैं इंतहाई परेशान है, धक्के खा खा के हमारे फसलें सूख रही हैं, खराब हो रही हैं, हमें खाद मिल ही नहीं रही। अगर मिलती भी है तो बहुत कम मिलती है। गवर्नमेंट अगर देती है तो एक बोरी देती है ज़मीन के कागज़ लेके। हम लोग जो ठेकेदार है, जो ठेके पे ज़मीन लेते हैं, वो कैसे कहाँ से खाद लाए। काश्तकार कहते हैं मुआशी बहरान पर काबू पाने के लिए ज़राअत मुल्क की वाहिद उम्मीद है, जबकि IMF की शायद पूरी करने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उससे मुल्क में ज़राई अजनास की किल्लत पैदा हो जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। बढ़ती महंगाई के असरात आम आदमी की जिंदगी मुतासर, मेहनत कश तबके से मौसमी सब्जियों की सौगात भी छिन गई। प्याज, घिया, कद्दू, फार्मी अंडे और दीगर अशिया खुरोनोश में होशरुबा इजाफा। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी, फैसलाबाद की गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिसने लगी। बढ़ती महंगाई ने आवाम से मौसमी सब्जियों की सौगात भी छीन ली। प्याज, घिया, कद्दू, फार्मी अंडे और दीगर अशिया खुरोनोश में इजाफा होने लगा। शहरी कहते हैं कि जितनी महंगाई हो गई है, मौसमी सब्जियां खरीद से बाहर हैं। कीमतें बाजी, सर्दियों की सब्जियां पहले लेने आसान होती थी, लेकिन अब तो सर्दियों की सब्जी भी नहीं खाई जा रही, इतनी महंगी हो गई है। जो पहले मटर गोभी सारा 150 रुपए किलो, इस दफा 100, 200, 300 से नीचे आए नहीं है। प्याज वो 200 रुपये, 250 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज 10 रुपए महंगा होने के बाद 142 से 152 रुपए किलो हो गया। घिया कद्दू 20 रुपए महंगा होते ही 150 से 145 रुपए किलो हो गया। शहरी कहते हैं आज कुछ रेट, कल कुछ रेट, जेब इजाजत नहीं देती। गरीब इंसान कहां से खाए। न सिर्फ सब्जियां, दालों की कीमतें, बल्कि गैस, बिजली के बढ़ते रेट्स भी जानलेवा हैं। बहुत महंगा प्याज, बहुत गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। काम बिल्कुल कोई नहीं है, लोग भूखे मार रहे हैं। लेकिन इस हुकूमत को कोई हया नहीं है। पर जो महंगाई, बिल इतने, गैस बिजली इतने, आप कोई टिंडिया मैंने पूछे 800 रुपए किलो, कौन क्या पकाएगा। शहरियों का कहना था कि हुकूमत महंगाई को काबू करे और कुछ ख्याल करे कि आवाम कितनी मुश्किलात का शिकार है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। पेट्रोल और बिजली महंगी होने के साइड इफेक्ट सामने आने लगे। घरों की तामीर में इस्तेमाल होने वाला सरिया महंगा। सरिये की कीमत में 4 से 5 हजार रुपए फी टन का इजाफा। सरिया 2,55,000 रुपए से बढ़कर 2,60,000 रुपए फी टन हो गया। पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ने से बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें आसमानों की बुलंदियों पर पहुंच गईं। ताजर मोहम्मद बेलाल का कहना था कि सरिया 2 हफ्ते से मुसलसल महंगा होना लम्हा फिक्रिया है। सरिया की कीमत में 4 से 5 हजार रुपए फी टन इजाफा हो गया है। 60 ग्रेड सरिया 2,55,000 रुपए से बढ़कर 2,60,000 रुपए फी टन हो गया है। आज पता चला है कि सीमेंट का रेट जो है उसमें 1500 रुपए से लेकर 20 रुपए बोरी तक जो है वो कमी वाक़या हुई। लेकिन उसके साथ ही अगला जो बॉम्ब बना के हमारे ऊपर गिराया गया है, वो सरिये का रेट जो है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो 20 रुपए किलो के हिसाब से बढ़ा दिया गया। ताजर मोहम्मद बिलाल का मजीद कहना था कि बिल्डिंग मटेरियल के कारोबार से जुड़े ताजर इंतहाई परेशान हैं। लोहा मंडियों में स्क्रैप और खाम लोहा 1,60,000 रुपए फी टन तक फरोख्त हो रहा है। मजदूर तबका, उसके बाद स्टील फिक्सर हो गए, सरिये की दुकानें और हमारे जो ठेकेदार हजरात हैं, उन सब की रोजी रोटी जो है वो खुल के चल सके, ये तो बहुत ज्यादा तवज्जो जो है मांग रहा है इस वक्त काम। सरिया महंगा होने से घरों की तामीर मजीद सुस्त रवि का शिकार है। प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक अफराद हुकूमत से तामीराती शोबे को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए मरात देने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगी बिजली, गैस के असरात मार्केट्स में आना शुरू, करोड़ों रुपए के नुकसान का खदशा, ताजरों की परेशानियां बढ़ने लगी। IMF की शराइत पूरी करने के चक्कर में इंडस्ट्री का पहिया रुक गया।
कपड़ा मार्केट्स में खरीदार न होने के बराबर। वफाकी हुकूमत के जाते जाते इंडस्ट्री पर एनर्जी कीमतों का वार। महंगी एनर्जी रेट्स इंडस्ट्री के लिए वबाल जान बन गए। महंगी बिजली गैस के असरात मार्केट्स में आने लगे। फैसलाबाद की लोकल कपड़ा मार्केटों में बेयकीनी की सूरत हाल तशवीशनाक। महंगी कॉस्टिंग से सीजन से कबल गाहक मार्केटों का रुख करना छोड़ गए। सीजन का तैयार माल फरोख्त ना हुआ तो नुकसान होगा। ताजर कहते हैं इन्वेस्टर पहले मार्केट से आउट हो चुका है, अब कास्टिंग मजीद महंगी हो रही है। कहां से इतने बिल दें, कारोबार करना नामुमकिन होता जा रहा है। महंगी एनर्जी से लोकल मार्केट में बेरोजगारी का तूफान आएगा। जो कारीगर हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा क्योंकि इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे है। दुकानदार हमारे फारिग बैठे हैं। चीजों की कीमतों में जो कपड़े की कीमत है इस वक्त मेरे ख्याल से तकरीबन आप पिछले साल और इस साल का हिसाब लगाएं, तकरीबन 40% उसमें इजाफा हो चुका है। तारकाबाद के शूज मार्केट में वीरानियों ने डेरे डाल दिए। महंगाई का बेकाबू जिन असरात मुरतब करने लगा। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, खरीदार मार्केट में आता नहीं। शूज का मटेरियल भी महंगा हो गया है। दुकानों के किराए बढ़े, बिल बढ़े, नहीं बढ़ी तो आम शहरी की उजरत नहीं बढ़ी। कारोबार तो बहुत डाउन हो गया। हुकूमत जब आई है ना, सारा कारोबार डेड हो गया है। कोई आज चलाई नहीं है। आज चलाई होती है, सारा हालात देख लें, पुल की वजह से बाजार वैसे सन्नाटा पड़ गए हैं। पल्लियों ही बंदे है, समझ लो तो बचता पुछता कुछ नहीं, समझ लो या बरबर ही चले जाइएगा या पल्लियों पे आके खा पी के चले जाइएगा। गवर्नमेंट एक नहीं, सारे इत्तेफाक करे तो फिर बन सकता है कुछ। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, ठीक है। एक हो तो फिर कुछ हमारा भी हो सकता, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हालात इन्ने खराब आ ना, बहुत खराब आ। अगे जो 25, 30, 40 जोड़े वे लेंदे सी, हुण 10, 12, 15। मुल्क को एक मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है जो बड़े फैसले कर सके। महंगाई पर काबू ना पाया तो आम आदमी की जिंदगी को निगल जाएगी। चिनियो पुलिस में क्रिमिनल्स की भर्ती की कोशिश नाकाम। 150 उम्मीदवारों पर मुख्तलिफ मुकदमात का रिकॉर्ड निकल गया। में क्रिमिनल्स की भर्ती की कोशिश नाकाम। 150 उम्मीदवारों पर मुख्तलिफ मुकदमात का रिकॉर्ड निकल आया। मुकदमात में मुलवस तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। पंजाब पुलिस चिनियोट की भर्ती के लिए 6073 उम्मीदवारों की दरखास्तें वसूल हुई। उम्मीदवारों के शनाख्ती कार्ड डेटा से क्रिमिनल रिकॉर्ड की चेकिंग की गई। पुलिस जराये के मुताबिक 150 उम्मीदवारों पर मुख्तलिफ मुकदमात का रिकॉर्ड निकल आया। उम्मीदवारों पर सियासी, मजहबी और क्रिमिनल एक्टिविटीज की दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। मुकदमात में मुलवस तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। 5923 उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल की जाएगी। उम्मीदवारों की उम्र, तालीमी काबिलियत और दीगर कागजात की चेकिंग भी होगी। फैसलाबाद पुलिस में भर्ती के लिए 13,000 फॉर्म जमा। लेडी कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट और ड्राइवर कांस्टेबल के लिए जमा हुए। लेडी कांस्टेबल के लिए 1800 और लेडी ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए 500 खवातीन ने फॉर्म जमा करवाए। क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर उम्मीदवारों से भर्ती फॉर्म वसूल नहीं किए गए। उम्मीदवारों के कद की पैमाइश का मरहला कल से पुलिस लाइन्स में शुरू होगा। कांस्टेबल की सीट के लिए जमा करवाए गए 179 भर्ती फॉर्म मुस्तरद कर दिए गए। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए जमा होने वाले 67 भर्ती फॉर्म मुस्तरद किए गए। फॉर्म में मतलूबा SOP पूरे न होने पर मुस्तरद किए गए। कोबा टैक्सिंग पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की रिक्रूटमेंट का शेड्यूल जारी कर दिया गया। कोबा टैक्सिंग पुलिस में 23 फरवरी को उम्मीदवारों के जिस्मानी पैमाइश होगी। उम्मीदवारों का 1 मार्च को दौड़ टेस्ट भी होगा। 8 मार्च को ड्राइवर कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का ड्राइविंग टेस्ट होगा। 13 मार्च से 16 मार्च तक रिव्यू बोर्ड होगा। 22 मार्च को उम्मीदवारों का तहरीरी टेस्ट लिया जाएगा। 27 मार्च को उम्मीदवारों का इंटरव्यू किया जाएगा।